Okay, ji, starting from this chapter number 3, that is about the shareholders. Can anyone tell me that what do you mean by the term shareholders? The person who purchased the share of the company is called shareholder. Very good. The person who purchases the shares of the company is known as shareholder. What is the other name of the shareholder? Stakeholder. Unit Stakeholders. unit holders, No. stakeholders, Stakeholder. Honor. Honor, sir. Stockholder, sir. Stockholder. They are the owner, but they are. जी फिरदौस आप कुछ आंसर करना चाह रहे हैं? Yes, sir. Sir, shareholders are basically partial owners. They legally owns one or more shares of the stock. Like if we have 50% share of the company, then what will be 1 lakh. And these are basically partially owners. Okay, these are the partially owners. Basically, shareholders are the owners of the business organization, and they own the shares of the company. That's why they are called as the shareholders. The other synonymous name of these shareholders is stockholder. Okay, shares and stock is one and the same thing. The person who owns the shares or the stock of any company are known as shareholder or stockholder. Again, British or American difference है. British use the term shareholder, American use the term stockholder. जो स्टेक होल्डर है ना, दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी. हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था. विद इन स्टेक होल्डर्स you have the shareholders, you have the managers, you have the suppliers, you have the lenders, you have the customers, you have the government agencies. तो वो एक ब्रॉडर टर्म है. शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर एक ही जो है ना वो चीज है. ठीक है जी. ओके जी. Who is a shareholder? He or she is the owner of the company. They are the beneficiary. They are supposed to receive the profits of the business organization in terms of dividends. They are the one who takes the risk on their investment, because generally in case of corporation, ownership and control is different. So the people who are making investment in the business organization, they are putting their investment at risk. They are putting their investment in the hands of the other people who are the managers or the directors of the company. So they are considered as risk bearer. Secondly, whenever a company is dissolved, initially the claim of the lenders is settled. सबसे पहले secured creditors की payment होगी, उसके बाद unsecured creditors की payment होगी, इसके बाद जो है फिर shareholders की जो है वो बारी आती है. तो since they are paid at the end, that's why these are considered as the one who are bearing the most risk of the company, and they are the decision maker of the company. How shareholders makes the decisions? Sir, basically in owner annual होता है. sir, in annual general meeting, select the directors, pass the resolutions, Very good, very help good. Yes, sir. help out the managers to for Very, decision making. very rightly said by Farooq that in annual general meeting, shareholders have the voting power to elect the board of directors. Last lecture में हम लोगों ने discuss भी किया था कि within the hierarchy, Yes, sir. shareholders are at the top. They appoint the board of directors, and then board of directors appoint the management. तो मैनेजमेंट क्या करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स को. Likewise, when different decisions are placed in the board of directors for approval, तो उसकी जो वोटिंग होती है फॉर या अगेंस्ट, वो एक्चुअली कौन कर रहे होते हैं? शेयर होल्डर्स कर रहे होते हैं जो है उसमें कि इस डिसीजन को टेकअप करना है या नहीं करना. तो दे आर द वन हु मेक्स द डिसीजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच आर टेकन इन द एनुअल जनरल मीटिंग. Then there are different types of the shares which are issued to the shareholders. ठीक है? There are ordinary shares, there are preference shares, and there are other type of these shares. पहले मुझे बताएं कि what do you mean by the term shares? Part सर, of आपके total कैपिटल को capital. छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. Part of इसको total शेयर्स कहते capital हैं. divided into the smallest piece. Share is a piece of paper, sir. Okay, very right. आमना और फरूक का सर शेयर की सर मार्केट वैल्यू होती है, वर्थ होती है इन अ सर्टेन मार्केट. ठीक है, वो तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, वो तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए जो है ना उसमें. हम अभी बात ये कर रहे हैं कि बेसिकली शेयर होता क्या है. तो आमना और फरूक ने Yes, जो है sir. ना जो पर्सपेक्टिव दिया कि द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ शेयर जो है ना उसमें. बिल्कुल Share. वेरी वेरी राइटली सेड. ये डेफिनेशन जो है ना यूज होती है. इसी तरीके से आदिल ने जो है ना वो आंसर किया था, इट्स अ पीस ऑफ पेपर.
Generally, what happens is that in case of corporations, when the companies are looking forward to raise the financing for themselves, so what they can do is they can offer the shares. तो हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में डिस्कस किया था कि फाइनेंसिंग को रेज करने के लिए वो क्या करती हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं. These certificates, these piece of paper are basically called as shares. ठीक है जी. तो हम इसको अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन कॉल देम एज द सर्टिफिकेट इशूड टू द ओनर्स इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम देम आर कॉल्ड एज शेयर्स. कि जो आप ऑनर से इन्वेस्टमेंट लेने के अगेंस्ट उनको जो पीस ऑफ पेपर दे रहे होते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप दे रहे होते हैं, दैट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप या दैट पीस ऑफ पेपर इज बेसिकली नोन एज शेयर. इज इट क्लियर सर? हम इस जी जी सर हम इसको क्लेम अगेंस्ट एसेट भी बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, क्लेम अगेंस्ट एसेट्स बोल सकते हैं. उसकी वजह यह है कि अगर आप रिकॉल करें, थोड़ा सा जो लोग नॉन फाइनेंस के बैकग्राउंड है वो अगर फिर उसको थोड़ा माइंड कर लेते हैं कि तो डिस्कशन उधर चली जाती है, तो बट स्टिल इफ समवन हैज एनी कंफ्यूजन तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो. तो फॉर एग्जांपल वी हैव द एसेट्स एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. यही होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिकली अकाउंटिंग में पढ़ी होगी आप लोगों ने. यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो बेसिकली ये जो आपकी साइड है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये किस चीज को शो कर रही है? इक्विटीज को सर. ये इक्विटीज को शो कर क्लेम रही ऑफ है. एसेट. ये बेसिकली शो कर रही है सोर्सेज ऑफ फंड्स को, फाइनेंस. कि पैसा आएगा कहां से. Some of these funds are provided by the owner of the business organization, which is technically known as owner's equity, and some of these funds would be borrowed from the outsiders, which is known as liabilities. ऐसे ही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ आपके पास अपनी सेविंग्स हैं, कुछ फंड्स अवेलेबल हैं जिनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके क्या है, ऑनर्स इक्विटी. कुछ अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, आउटसाइडर से बोरो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लेते हैं, तो जो बैंक से लोन ले रहे हैं वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज हैं. तो अब फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से किया कि 10 जो मिलियन था वो आपने लायबिलिटीज ली और 20 मिलियन खुद से इन्वेस्ट किया. ठीक है जी. 10 मिलियन लायबिलिटीज एंड 20 मिलियन खुद से इन्वेस्ट किया, तो टोटल ये इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 30 million. 30 मिलियन होगी. ऐसी है. तो इसका मतलब है ये जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जितना आपके पास पैसा है, इसको आपने क्या करना है, यूज करना है. किस चीज के लिए यूज करना है? डिफरेंट फंड्स को एक्वायर करने के लिए. ठीक है जी. in order to acquire the different resources of the business organization, तो those resources are technically called as assets of the business organization. तो इसका मतलब ये जो 30 मिलियन है, इसमें से कुछ अमाउंट क्या बिल्डिंग ले लेंगे, कुछ फर्नीचर आप ले लेंगे, इक्विपमेंट जो है ना वो आप एक्वायर कर लेंगे, और कुछ अमाउंट शायद कैश की फॉर्म में या बैंक अकाउंट में जो है ना आप होल्ड कर लेंगे. तो इसका मतलब है ये जो 30 मिलियन है इसके एसेट्स आप एक्वायर कर लेंगे. अब अगर आप देखें ये जो 30 मिलियन के एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें से आउटसाइडर ने कितना इन्वेस्ट किया है? 10 million. 10 मिलियन सर. तो इसका मतलब है इस 30 मिलियन में से 10 मिलियन पे किसका क्लेम है? लेंडर्स का, आउटसाइडर्स का. और इस 30 मिलियन में से 20 मिलियन पे किसका क्लेम है? ओनर्स का. ओनर्स का जो है उसमें. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली द क्लेम ऑफ ऑनर ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज ऑनर्स इक्विटी, and the claim of outsiders या lenders on the assets of the business organization are known as liabilities. ठीक है. तो इन्हीं शेयर्स को, ये जो हमारे ऑनरशिप जो है ना वो शेयर्स हैं, ये बेसिकली किस चीज के ऊपर क्लेम हमारा जो ना इंश्योर कराते हैं? क्लेम ओवर दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर जी? Yes. यस सर. ओके जी, गुड. अच्छा जी, चले. So there are 3 types of the share: ordinary shares, preference shares, and other types of the shares. So starting with the basic discussion,
Any idea about that? What do we mean by ordinary shares? सर ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो आम जनरल पब्लिक बाय करती है और इसके ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा। ये बेसिकली ओनर्स होते हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो तो साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, पहली बात तो ये है कि वेरी राइटली सेड कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर इशू टू द जनरल पब्लिक। जो नॉर्मली जो कंपनी जो शेयर ऑफर कर रही होती है जनरल पब्लिक को, उनको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है। एक पॉइंट। सेकंड, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए गए हैं, द पीपल हु आर परचेजिंग दीज शेयर्स आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया एज एन ऑनर, तो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी उनको जो है ना वो क्या किया जाएगा? शेयर दिया जाएगा। तो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड्स। इसका मतलब है कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगी, जो डिविडेंड अर्न करेगी, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें इन लोगों का क्या होगा? हिस्सा शामिल होगा, क्लेम जो है ना शामिल होगा। इसी तरीके से प्रॉफिट जब होगा तो इनको प्रॉफिट में से शेयर दे दिया जाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उस सूरत में इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। और क्या जी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? सर इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं सर। वेरी गुड, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस होने हैं, उन डिसीजंस के फॉर या अगेंस्ट में जो है ना वोट करने का राइट किसके पास है? आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास है। जी, व्हाट एल्स? सर और इन केस जब वो डिविडेंड होता है वो सबसे एंड पे दिया जाता है इनको। ठीक है, जब इनकी Ordinary पेमेंट्स shareholders होंगी तो पहले जो है इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट होगी, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से क्या किया जाएगा? जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको पेमेंट की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और को दिया हाँ जाता है। जी, और फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? कॉमन शेयर होल्डर्स को। लेट्स सपोज लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है तो सेल्स हैं, सेल्स में से आपने क्या किया? लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास क्या चीज आ गई? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिनको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी बोलते हैं। एडमिन, ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। इसमें से अगर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसको आप माइनस कर देंगे, अगर इंटरेस्ट इनकम है उसको ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आप क्या करेंगे? टैक्स को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जिसको हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी बोलते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास आया है, इसमें से आपने क्या करना है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे? जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देंगे और इनको जो प्रॉफिट दे देंगे, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इसके बाद जो पेमेंट होगी किसको होगी? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को होगी। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक इट लाइक दिस कि हमारे पास जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैड अ सेल ऑफ 100, वी हैड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ लेट्स सपोज 55, इसको माइनस किया तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 45। इसमें सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है हमारे पास 15, इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 30। इसमें से हमने क्या किया? इंटरेस्ट एक्सपेंस था 10, इसको माइनस किया तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 20। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो टैक्स था वो $4 था, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 16। अब इस 16 में से हमने प्रेफर्ड डिविडेंड देना है, तो लेट्स सपोज $6 प्रेफर्ड डिविडेंड दे दिया, तो कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए कितने पैसे बच गए? $10। इसमें से हम क्या करेंगे? अगर हम डिविडेंड देते हैं, कॉमन डिविडेंड या जिसको हम डिविडेंड बोल रहे होते हैं, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लेट्स सपोज हमने $5 ये दे दिया, तो जो बाकी प्रॉफिट बचेगा दिस नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अब इसमें देखें कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं इनको क्या होगा? एंड पे क्लेम मिल रहा है। पहले आपने क्या किया? लेंडर्स का जो इंटरेस्ट पे करना था वो पे कर दिया, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करना था वो आपने पे कर दिया। अब जो कुछ बाकी बचा है वो क्या है? कॉमन डिविडेंड। वो क्या करेंगे? इनको पे करेंगे। तो इज इट क्लियर जी? तो इनका क्या होता है?
रेजिडुअल क्लेम है। रिमेनिंग क्लेम होता है कि आफ्टर पेइंग टू दी ऑल दी अदर लेंडर्स व्हाटएवर दैट इज लेफ्ट दैट वुड बी गिवन टू दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जी जी। जिस तरह आपने बताया कि पहले प्रेफर्ड जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे किया जाता है और उसके बाद जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा जी। इन केस अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जो रिटेन्ड अर्निंग बचती है बाकी जी। मिसाल के तौर पे सारा कुछ लाइबिलिटीज पे करने के बाद, ठीक है। तो जो और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं क्या वो उसको क्लेम कर सकते हैं उसमें से भी जो बाकी बचा है उसमें से, या सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को वो जो है बाकी जो चीज बची है उसमें से मिलेगा? अच्छा, अब उसमें दो चीजें हैं। पहले इस पे किसी और का कोई क्वेश्चन है जी, फिर मैं शाबान के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, चलें। अब शाबान आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ये है कि जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी तो लिक्विडेशन में आपने सबके क्लेम्स को जो है ना सेटल कर दिया कंपनी के एसेट्स को पे करके, जो रिटेन्ड अर्निंग बाकी बची है। देखें प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की क्या सिचुएशन है कि आपने जब लिक्विडेशन करनी है तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड आपके क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं इनकी करेंगे, फिर जो प्रेफरेंशियल हैं जो मींस जो बॉन्ड होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी या इस किस्म की जो है ना इनको करेंगे, जो है ना प्रेफरेंशियल डेट से इनको पे करेंगे। इनको पे करने के बाद लिक्विडेटर का जो कमीशन है उसको आप जो है ना वो पे करेंगे। लिक्विडेटर कमीशन देने के बाद आप क्या करेंगे, जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं इनका जो क्लेम रहता है उसको आप पे करेंगे, और फिर इसके बाद लास्ट में किसको पे करेंगे, कॉमन स्टॉक holders को। That's why it is also said that the common stockholders have residual claim. Residual means they have the remaining claim, that after paying all the other stakeholders of the business organization, whatever that is left, that would be paid to the common stockholders. Is it clear जी? अब वो जो आप चीज कह रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर, तो देखें जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड की हद तक बात है वो डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया गया है जो है ना उसमें। अब उनका डिविडेंड के ऊपर रिमेनिंग क्लेम नहीं है। उनका रिमेनिंग क्लेम किस चीज का है कि जितनी अमाउंट के उनके यहाँ पे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल 14 मिलियन के आपने क्या किया, प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए हुए, तो कंपनी के एसेट्स जो लिक्विडेट होंगे उसको और प्लस उनके पास जो रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से उन्होंने क्या करना है, इस 14 मिलियन को सेटल करना है। तो अगर कंपनी के एसेट्स इनफ है इसको पे करने के लिए तो रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर उनका कोई क्लेम नहीं है, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह से है कि कंपनी के एसेट्स को सेल करने के बाद इतने पैसे नहीं बचे कि इनकी लायबिलिटीज पे हो सके या उनकी पेमेंट पे हो सके, तो उस सूरत में रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज करके इनको पे किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो किसको दिया जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। इज इट क्लियर? जी सर, थैंक यू। कर दो। इसमें यह है कि आपकी जो लिक्विडेशन होगी ना और जो डिविडेंड की पेमेंट है, दोनों में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, और सबसे आखिर क्लेम किसका होगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का क्लेम होगा। अब जो शाबान का क्वेश्चन था वो ये था कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो कंपनी ने जो प्रॉफिट रिटेन किया है अपने पास उसका डिस्पोजल क्या होगा। तो उसका आंसर ये है कि अगर तो कंपनी के एसेट से जो जनरेट किया हुआ पैसा है उसको सेल करने से पैसा है उससे वो लोन पे हो सकता है, तो कंपनी सिंपली क्या करेगी, उस पैसे को यूज करेगी, इन रिटेन्ड अर्निंग को इस्तेमाल नहीं करेगी, इसके ऊपर कॉमन स्टॉक होल्डर का हक है। लेकिन अगर पैसे इतने नहीं एसेट्स को सेल करके जनरेट होते तो उस सूरत में इस रिटेन प्रॉफिट को यूज करके उनकी डेट्स या उनके जो क्लेम्स हैं उनको क्या किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा डिबेट है, अगर उसमें किसी को नई टेक्निकलिटी समझ आई तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके जी, टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी शेयर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ द शेयर्स व्हिच आर परमानेंट इन नेचर। क्या मतलब है परमानेंसी का? क्या मतलब है कि द इन्वेस्टमेंट जब तक दैट इज, सर बिजनेस की लाइफ, जी जी फारूक बोलें।
सर जब तक बिजनेस की लाइफ है तब तक ये उधर ये एक दफा इशू हो गए दोबारा वापस। अच्छा ठीक है जो ना उसमें सर अनम क्लेम नहीं होते ये, इन पे सिर्फ जो होता है वो आपको डिविडेंड मिलता है। अच्छा ठीक हो गया जो ना उसमें अनम जहांगीर, आप बताएंगे कि ये जो परमानेंट फीचर है, परमानेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? अनम, कैन यू हियर मी? आतिफ एहसान, कैन यू हियर मी? जी सर, यस सर। जी आतिफ, how would you define this permanent nature of investment? How the shares reflect the permanent nature of investment? सर ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं सर, इसमें कंपनी का करेक्टरिस्टिक है सर परपेचुअल सक्सेशन। ये शेयर्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये शेयर्स मतलब खत्म नहीं होते, इन्वेस्टमेंट कायम रहती है। ठीक है। और इनको रीपरचेज भी नहीं कर सकते आप, और ये मतलब चलते रहते हैं जब तक कंपनी की लाइफ होती है। ठीक है, वेरी गुड। एक जनरली ओनर ट्रांसफर हो सकते हैं, ओनरशिप चेंज हो सकती है, लेकिन शेयर्स मार्केट में रहेंगे। ठीक है, जनरली हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, गोइंग इसमें कंसर्न एक चीज मैं अगर ऐड करना चाहूँ सर। जी सर, परपेचुअल सक्सेशन होती है सर, कंपनी की लाइफ जो होती है वो मूव ऑन रहती है। जी जी ठीक है। जी आदिल, आप कुछ कह रहे हैं? और मैं ये कहना चाह रहा था ना कि जिस तरह आसिफ भाई ने बोला ना कि इसको हम परचेज नहीं कर सकते, यानी कंपनी परचेज नहीं कर सकती, तो जो फिर ट्रेजरी स्टॉक का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कंपनी लास्ट टाइम तो वो मतलब अपने जो शेयर्स उसने इशू किए तो वो री बाय कर देती है, दोबारा परचेज कर देती है ना मतलब। जी आदिल, मैं दोनों आंसर करता हूँ जो है ना उसमें। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जो फाइनेंस वाले हैं ना, ये बीच में शरारत कर जाते हैं, फिर चीज़ों को टेक्निकल साइड पे ले जाते हैं, बाकी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं जो ना, तो उनको तंग ना किया करें। तो अच्छा, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो बात आतिफ ने की बिल्कुल ठीक है कि जनरली अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, मींस द बिजनेस इज सपोज्ड टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट की है तो एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्टेड रहेगी। आपकी ऑनरशिप चेंज हो सकती है, आप स्टॉक मार्केट में अपने शेयर सेल कर दें, वो कोई और बाय कर देगा, वो शेयर सेल करता है कोई और पर्सन जो है ना बाय कर लेगा, लेकिन जो कंपनी में आपका पेड अप कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो चेंज नहीं होने लगा यार। ठीक है, वो अनलेस और अनटिल जो है कंपनी जो है वो वाइंड अप होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट परमानेंट सोर्स है कि मतलब 1 साल 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट नहीं किया, जब तक कंपनी एग्जिस्टिंग है कंपनी उस पैसे को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। अब जो दूसरी बात की है कि कंपनी इन शेयर्स को रीपरचेज नहीं कर सकती, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि जनरली ये जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो इसके साथ ये कमिटमेंट नहीं होती कि कंपनी इन शेयर्स को क्या करेगी, बाय बैक करेगी। मींस कंपनी की लायबिलिटी नहीं है कि उसने ये शेयर्स बाय बैक करने हैं। शेयर होल्डर्स ने जब ये इन्वेस्टमेंट कर दी है तो लेटर ऑन अगर उनको पैसे चाहिए वो स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को लायबल नहीं कर सकते, कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वापस करें। एक चीज। दूसरा ये है कि अगर कंपनी किसी टाइम पे ये चाहती है कि अपने शेयर्स को रीपरचेज कर रही है तो एज ट्रेजरी स्टॉक वो रीपरचेज कर सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि जैसे बॉन्ड्स इशू होते हैं, तो बॉन्ड्स इशू जब होते हैं तो उसके साथ मैच्योरिटी पीरियड डिफाइंड होता है कि 5 इयर्स के बॉन्ड है या 10 इयर्स के। तो इसका मतलब है कंपनी 5 ईयर या 10 ईयर का लोन ले रही है, 5 ईयर के बाद अगर कंपनी वो बॉन्ड होल्डर्स से बॉन्ड्स वापस लेके उनको पैसे नहीं देती, तो जिस तरह आप लोन वापस नहीं करते तो वो जाके आपके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स जो है उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब है ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंपनी में की है ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए की है। अगर कंपनी खुद से शेयर बाय बैक करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन आप लीगली उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आपके शेयर वो रीपरचेज करे। आप उन शेयर्स को क्या करेंगे, ओपन मार्केट में सेल करके अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। यस सर। ठीक है जी। सेकंड है नो नॉमिनल कॉस्ट टू दी कंपनी जो है ना उसमें। अब जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं तो शेयर्स की इशुएंस के टाइम के ऊपर कंपनी को क्या करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए
जो अंडर राइटर्स हैं उनको बीच में एंगेज करना पड़ता है। अंडर राइटर्स गारंटर्स होते हैं जो इस चीज की गारंटी देते सर हैं। जी जी सर, ये नॉमिनल कॉस्ट बता दें क्या होता है? जी, मैं उसी को ही बता रहा हूँ, उसी को बता ओके रहा सर। हूँ। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स इशू करती है तो उसको कुछ जो है ना बीच में इंस्टीट्यूशंस को एंगेज करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक्स हो गए या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए एज अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स बेसिकली ये गारंटी देते हैं कि इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट टेकन अप बाय द जनरल पब्लिक दे विल परचेज द शेयर्स। तो कुछ कंडीशन में वो खुद से ही शेयर परचेज कर लेते हैं और जनरल पब्लिक में फ्लोट करते हैं, और कुछ में सिर्फ वो ये गारंटी दे रहे होते हैं कि अगर शेयर्स किसी और ने ना परचेज किए तो हम परचेज कर लेंगे। तो इनको क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है। इसी तरह से वो एडवर्टीजमेंट होगी जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए, एप्लीकेशन की जो है ना प्रोसेसिंग है, तो इसके अंदर जो है ना क्या चीज़ है, कॉस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर इशू किए जाते हैं उन शेयर्स के ऊपर कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और एट द टाइम ऑफ इशुएंस भी उनको क्या करनी पड़ती है, इशुएंस कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। देन देयर इज रेजिडुअल क्लेम ऑन द प्रॉफिट्स। ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो इनकम स्टेटमेंट वाला है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले पेमेंट करेंगे, और अगर कुछ बाकी बच जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर को, क्योंकि इनको सबसे एंड पे मिलना है, इनका सबसे रिमेनिंग क्लेम है, तो दैट रिमेनिंग क्लेम इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिडुअल क्लेम। ठीक है, कि सबसे आखिरी जो क्लेम होगा प्रॉफिट्स के ऊपर वो किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा। इसी तरह लिक्विडेशन वाला भी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, इसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो लिक्विडेटर कमीशन की है, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स के ऊपर भी जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे आखिरी क्लेम किसका होगा, शेयर होल्डर्स का। इसी वजह से इनका रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है, वो जो शुरू में हमने डिस्कस किया था। लेकिन इनके साथ बेनिफिट जो एसोसिएटेड होता है, दे हैव द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि ये क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके अंदर ये अपने जो है ना उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड दे हैव द राइट ऑफ परचेजिंग न्यू शेयर्स। तो जब भी कंपनी शेयर्स को इश्यू करेगी तो नॉर्मली उन शेयर्स को राइट शेयर्स कहा जाता है, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का प्रिमिटिव राइट होता है कि सबसे पहले उन शेयर्स को कौन परचेज करें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर वो परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन शेयर्स को फिर क्या किया जाता है, अदर जो है ना वो शेयर होल्डर्स में या ओपन मार्केट में जो है ना वो फ्लोट कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ परचेजिंग न्यू शेयर का मतलब है कि सबसे पहला जो क्लेम है वो किसका है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट की थी कंपनी में। तो अब जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है तो पहला राइट उनका है कि वो उन शेयर्स को बाय जो है ना बाय करें, और अगर वो नहीं बाय करते तो फिर उस सूरत में उन शेयर्स को क्या किया जाएगा, दूसरे लोगों को दे दिया जाता है। तो एक नोटिस सर्व किया जाता है कि विद इन 15 डेज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दीज शेयर्स, जो नॉर्मली मार्केट वैल्यू से कम पे ऑफर किए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर शेयर ट्रेड हो रहा है 35 रुपीज का, तो हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 25 का दे दें। तो 25 का लेके अगर मार्केट में सेल भी करना चाहते हैं तो 10 रुपीज का उनको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो उनको नहीं किसी को देना चाहते और अपनी ऑनरशिप जो है ना रिटेन करना चाहते हैं, या परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप रिटेन करना चाहते हैं, तो वो शेयर्स खुद से परचेज करके अपने पास रिटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी परमानेंट जो है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, ठीक है सर, जी जी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, जी जी इसमें डिविडेंड का भी डिफरेंस होता है ना, कि इनका डिविडेंड तो फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जी और बिल्कुल जो सही। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं फिर ये फिक्स अमाउंट हमें एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पूरी की पूरी पे करनी पड़ती है। सॉरी दोबारा क्वेश्चन पूछें। जो प्रेफर्ड सर, स्टॉक होल्डर, जब जी हमने अभी आपने लास्ट में बताया ना कि लिक्विडेशन में जो थर्ड नंबर पे राइट होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का होता है। जी सही है, तो एक तो इन हमने यही पढ़ा हुआ है कि इसमें जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। बिल्कुल तो ऐसे एट ही। द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो फिक्स इन चार्जेस होते हैं वो हमें उतनी फिक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ती है, यानी जितने हमने तय की हुई होती है कि आपको इतना फिक्स्ड जो होता है डिविडेंड देंगे।
ठीक है। अच्छा, डिविडेंड और लिक्विडेशन दो डिफरेंट चीजें हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर फिक्स डिविडेंड होता है, वो बिल्कुल ठीक है बात जो है ना, कि फॉर एग्जांपल एक जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उसकी पार वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज $100 है, और उसके ऊपर जो डिविडेंड है जिसको प्रेफर्ड डिविडेंड कहते हैं वो है लेट्स सपोज 6%। तो इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगी, डिविडेंड की जो अमाउंट है वो हम क्या कर सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो हम क्या करेंगे, 100 को 6% ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, $6। तो इसका मतलब है एक शेयर के अगेंस्ट हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कितनी डिविडेंड देंगे, $6 का डिविडेंड देंगे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल एज एन इन्वेस्टर आपके पास 500 शेयर्स हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 6, इस साल का डिविडेंड कितना आपका बनता है, $3000 बनता है। तो क्योंकि ये रेट फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या हो, तो इस वजह से हम कहते हैं जी कि इनके ऊपर फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। दूसरी जो आपने बात की थी कि जो पेमेंट इनकी होगी, तो अब पेमेंट पे क्लेम तो ये है $6 का। अगर कंपनी के पास पैसे होंगे तो कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे $6 के हिसाब से उनको पेमेंट करेगी, और ये जो $100 है इसको भी उन्होंने वापस करना है। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, डिफॉल्ट कर जाती है, तो हो सकता है इनकी पेमेंट भी रिकवर नहीं हो। और अगर पैसे हैं तो $100 के हिसाब से पर शेयर की कंपनी पेमेंट करेगी, और अगर कोई डिविडेंड भी उनका बनता है तो उस सूरत में उनको डिविडेंड भी दिया जाएगा। ठीक है जी। सर इनको फिर इनका जो प्रॉफिट है वो गारंटी होता है, यानी कि लाजमी मिलेगा? जी बिल्कुल, जो है ना प्रॉफिट है उसमें दो किस्म के शेयर्स होते हैं, वो थोड़ी डिस्कशन पहले आ जाएगी। एक कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, एक नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। जो नॉन कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव का मतलब होता है कंबाइन होना जो है ना, तो नॉन कम्युलेटिव जो है उसका तो ये है कि जिस साल कंपनी डिविडेंड देगी उस साल उनको जो है ना डिविडेंड मिलेगा, जस्ट लाइक कॉमन स्टॉक होल्डर्स। अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उस साल उनको जो है ना डिविडेंड नहीं मिलेगा। कम्युलेटिव डिविडेंड के अंदर ये है कि अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो इस साल का डिविडेंड और अगले साल का डिविडेंड कंबाइन होकर उनको डबल मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो एक शेयर के ऊपर एक साल का डिविडेंड कितना बनता है, $6। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड कंपनी पे करेगी तो $6 पिछले साल का और $6 इस साल का पर शेयर जो है ना वो डिविडेंड कितना देगी, $12। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब वो कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होगा। कम्युलेटिव प्रॉफिट स्टॉक का मतलब है कि एक साल का डिविडेंड कंबाइन होकर अगले साल में